کے زرعی شعبے کو مزید ترقی دی جا سکتی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا دیہی خواتین کے عالمی دن پر پیغام، کہا معاشرے کی تعمیر و ترقی میں دیہی خواتین کا کردار اپنی جگہ مسلمہ ہے۔ دیہی خواتین نہایت محنتی اور جفاکش ہیں اور ان کی خدمات پر انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ رواں سال کپاس کی ریکارڈ پیداوار میں دیہی خواتین کی محنت بھی شامل ہے۔ دیہی خواتین وہ ورک فورس ہے جسے منظم کر کے زرعی شعبے کو مزید ترقی دی جا سکتی ہے۔ سی ٹی ڈی پشاور نے مزید 128 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کے سیل کی قیمت سمیت گرفتاری کے لیے اشتہاری جاری کر دیا ہے۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں اس وقت 294 دہشت گرد سی ٹی ڈی کو مطلوب ہے۔ جاری کردہ اشتہار میں دہشت گردوں کے سیل کی قیمت 3 لاکھ روپے سے 6 کروڑ روپے تک رکھی گئی ہے۔ سی ٹی ڈی کے مطابق مطلوب دہشت گرد میں آصف عرف چھوٹو، اورنگزیب عرف عمر خراسانی کے نام شامل ہیں۔ نوڈیرو کے گاؤں ابراہیم کی وانڈ میں کارروائی کے معاملے پر جاری تنازع ایک بار پھر بھڑک اٹھا۔ ڈہانی برادری کی فائرنگ، جھیا برادری کے 2 افراد جاں بحق۔ مرنے والوں کی شناخت ایاز علی محمد حسن کے نام سے ہوئی۔ نوڈیرو پولیس جائے وقوع پر پہنچ کر محمد حسن کی لاش کو نہر میں پھینک دیا گیا۔ تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ لڈن میں مبینہ پولیس مقابلہ، 65 سنگین مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ڈکیت اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے ڈکیت علاقے میں خوف کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ شہریوں پر فائرنگ کرنے سے گریز کیا کرتا تھا۔ ملزم عرفان عرف عرفانی سہو کو برآمدگی کے لیے جایا جا رہا تھا کہ موزہ تسوانہ کے قریب ساتھیوں نے ملزم کو چھڑوانے کے لیے فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ کے تبادلے کے دوران ملزم کے ساتھیوں کی اندھا دھند فائرنگ سے ڈکیت عرفان عرفانی سہو موقع پر ہلاک ہو گیا۔ ڈی پی او سعدکاباد رضوان عمر گوندل کی قیادت میں اینٹی ہنی ٹریپ سیلز کی کارروائیاں جاری ہیں۔ مزید 3 شہریوں کو اغوا ہونے سے بچا لیا۔ شہری سستی کیری ڈبہ خریدنے کے لالچ میں کچا سندھ کے اغوا کاروں کے چنگل میں پھنسنے جا رہے تھے۔ بلال احمد، جاوید اختر اٹک کے رہائشی جبکہ سفیر احمد کا تعلق ہری پور سے ہے۔ پولیس کی جانب سے ہنی ٹریپ کے ذریعے اغوا ہونے سے بچائے گئے شہریوں کی تعداد 227 ہو گئی۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کہ پولیس شہریوں کی حفاظت رہنمائی کے لیے 24 گھنٹے موجود ہے۔ اور غوث میں تیز رفتار موٹر سائیکل بے قابو ہو کر سلپ ہو گیا۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق۔ مرنے والے شخص کی شناخت ساون اوگاہی کے نام سے ہوئی ہے۔ السلام علیکم، کوہر روڈ نیوز کے ساتھ میں ہوں اقصیٰ خان۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز شارٹ بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کھرڈاک کے قریب پارس پبلک ہائی اسکول پیروسن میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ بجر چانڈیو حسنین شر نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ ٹیچر اعجاز امداد ظاہر شر، امیر حمزہ،
اور شر غلام رسول شر، سہیل موجانی، ساحل مجیدانہ، دیدار مجیدانہ اور مزید لوگوں نے شرکت کی۔ افسوسناک خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ مردان کی بغدادہ سر انجام خان مارکیٹ میں آتے صدقی کپڑے کی دکان میں جل کر راکھ آگ کو بروقت مزید پھیلنے سے روک کر قریبی دکانوں کو بڑی تباہی سے بچا لیا گیا، تاہم آگ لگنے کے باعث کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہ ہوا۔ وہیں دوسری جانب پریس کلب ڈہرکی کے بانی سینئر صحافی پیر بخش راجڑی 2 سال سے موسی مرض کینسر میں مبتلا ہے، حکومت سے سرکاری خرچ پر علاج کرانے کی اپیل کر دی۔ ورثا کا کہنا ہے کہ تمام جمع پونجی علاج پر خرچ کر دی گئی، حکومت مالی مدد کرے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں پریس کلب ڈہرکی سے، جہاں بانی سینئر صحافی پیر بخش راجڑی 2 سال سے موسی مرض کینسر میں مبتلا ہے۔ شجاع آباد کے نواحی گاؤں عبد الکریم خاص کھیلی میں رشتہ نہ دینے پر 62 افراد محنت کش کے دشمن بن گئے۔ دودہ خاص کھیلی غلام قاسم نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ 62 افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور ہم کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ اور غلام قاسم خاسکل نے میرپور خاص سٹی پریس کلب پہنچ کر احتجاج کیا اور الزام عائد کیا علاقے کے 62 افراد معشوق خاسکلی، ساجد خاسکلی، زائد خاسکلی، محمد عاشق خاسکلی اور دیگر زبردستی رشتہ لینے کے لیے گھروں پر دعویٰ بول کر تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ چند روز قبل 62 افراد نے گھر میں گھس کر جان سے مارنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم ان کو رشتہ دینا نہیں چاہتے۔ شکایت متعلقہ مروا پولیس اسٹیشن پر دی ہے، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی اور کوئی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پولیس ہم کو تحفظ دینے کے بجائے 62 لوگوں کے ساتھ ہے، اس لیے ہم مجبور ہو کر سٹی پریس کلب میرپور خاص پہنچے ہیں۔ اساں غریبن کا ناک کرن رہا وہ تھوڑا تھوڑا ہانے کیس اساں تے ایسی ایفائر کرن حاضر تھیا اساں کا 30 تاریخ ایے پہ بھاجو اج 15 16 تاریخ تھن واری ہے، اساں جو کوئی احتیاط کون پہ تے اساں غریب مانن کا ظلم ہے۔ جی تھانو تعلقو سجاباد ہے، تھانو میروا گرچانی جی ایف آر میں ایسی کٹرائی ہے 30 تاریخ اساں خالی ڈوڑوں پیا۔ مطالبو یہ ہے اساں غریبان جو حق تے اساں کا نا کی آئی فارو ہیں اساں دے کوڑا الزام نہ لگائیں۔ اس میں وہیں دوسری جانب نوڈیرو کے گاؤں ابراہیم کی وارڈ میں کاروکاری کے معاملے پر جاری تنازع ایک بار پھر بھڑک اٹھا۔ ڈہانی برادری کے فائرنگ سے جیا برادری کے 2 افراد جاں بحق، مرنے والوں کی شناخت ایاز علی محمد حسن کے نام سے ہوئی ہے۔ نوڈیرو پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی، محمد حسن کی لاش کو نہر میں پھینک دیا گیا، تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ناظرین خبر شامل کرے گمبٹ کے نواحی گاؤں محمد ہاشم بھٹی سے، جہاں سڑک کی تعمیر کا کام سست روی کا شکار ہے۔ علاقہ مکین کا احتجاج جاری ہے، ٹھیکیدار کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ محسن بھٹی، علی رضا شیخ، سلیم شیخ، ارشاد بھٹی کا کہنا تھا کہ 2 ماہ سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود سڑک کا کام مکمل نہیں ہو سکا۔ ناظرین خبر یہ ہے کہ کھیل صحت مند جسم اور مثبت انداز سوچ کو پروان چڑھانے کے لیے کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایس پی موٹر وے پولیس شہباز عالم کا انٹرا سیکٹر گیمز کے موقع پر تبادلہ خیال، کہا کھیلوں کے فروغ سے صحت مند معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اوکاڑا میں انٹرا سیکٹر کھیلوں میں کرکٹ، فٹ بال، والی بال، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس اور رسہ کشی سمیت ایتھلیٹکس کے مقابلوں میں سیکٹر بھر کے کھلاڑیوں نے بھرپور حصہ لیا۔
लुटन में मुबैना पुलिस मुकाबला 65 संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता इश्तिहारी डकैत अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। हलाक होने वाले डकैत इलाके में खौफ की अलामत समझा जाता था, जबकि शहरियों पर फायरिंग करने से गुरेज बिना करता था। मुलजिम इरफान और इरफानी सहू को थाना लुटन के मुख्तलिफ मुकदमात में बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। नाज़रीन, दुनिया भर की तरह सादकाबाद में भी बसारत से महरूम अफराद तहफ़्फ़ुज़ सफेद छड़ी डे मना रहे हैं। इस सिलसिले में जिना हॉल में तकरीब का इनेकाद किया गया। वाइस चेयरपर्सन डिसेबल फाउंडेशन प्रोफेसर शकीला यास्मीन मुस्तहिक अफराद में सफेद छड़ियाँ और व्हील चेयर तकसीम की। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि दुनिया भर की तरह सादकाबाद में भी बसारत से महरूम अफराद तहफ़्फ़ुज़ सफेद छड़ी डे मना रहे हैं। इस सिलसिले में जिना हॉल में तकरीब का इनेकाद किया गया। नासिर ट्रक कार्ड खूबसूरत रंगों से मुज़य्यन ट्रक पाकिस्तान की पहचान है। ब्रश से कारीगर पाकिस्तान की मुख्तलिफ सकाफत को यूं तख्लीक करता है कि हर कहानी रंगों की जुबानी अया हो जाती है। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। ट्रक लंबी मुसाफतों की सवारी और इस पर बने नक्शो निगार हर मंजिल पर पाकिस्तान की सकाफत को बयान करते हैं। सिंध और पंजाब के संगम पर वाक़या सादिकाबाद, जहां के कारीगर सामान बरदार ट्रकों पर फूल पत्ती और चमक पट्टी से यूं आराइश करते हैं कि देखने वाले दाद दिए बिना नहीं रहते। अभी ये कंप्लीट हो गई है, इसके ऊपर बड़ा खर्चा किया है, बड़ी मेहनत करवाई है, मिस्त्रियों ने मेहनत की है, ये वायरिंग वाले ने भी मेहनत की है और कुशन वाले ने भी मेहनत की है, रंग वाले ने भी मेहनत किया है। मशहूर शख्सियात, कौमी हीरोज, दिलकश वादियों के पुरकैफ नज़ारे और गुलकारी, खूबसूरत आर्ट मुख्तलिफ इलाकों की तहजीब की अक्कासी करता है। यहाँ पे पशोरी हैदराबाद जो डेरे वाले काम होता है, गाड़ी वाला जो भी बोले तो उस तरह का काम करते हैं। यहाँ पे ज़्यादा तस्वीर वगैरह का काम होता है। यहाँ पे हैदराबादी फूल पत्ती का काम ज़्यादातर होता है। ट्रक की अंदरूनी सजावट ड्राइवर अपनी मर्जी से करवाता है। झालर, मोतियों की माला और शीशों से ट्रक को तैयार करवाया जाता है। उसके बाद हम कुशन करते हैं, पर्दे लगाते हैं, ये झालरें लगाते हैं, ये डेकोरेशन का काम करते हैं, मोती लगाते हैं, शीशे लगाते हैं, प्लास्टिक लगाते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरत के साथ काम होता है। 2 माह में तैयार होने वाले और खूबसूरत रंगों से सजे ये खूबसूरत ट्रक न सिर्फ आर्ट का बेहतरीन नमूना है, बल्कि इसके साथ साथ हमारी सकाफत का हिस्सा भी है। कैमरा टीम के साथ अली मिरानी। नाज़रीन, खबर ये है कि जलालपुर पीरवाला में सरकारी तालीमी इदारों की निजकारी लीव इनकैशमेंट के तरमीमी फैसले के खिलाफ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की टीचर समेत तालिबात ने पुरअमन एहतजाज किया। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे ख्वाजा शहजाद अहमद। जलालपुर पीरवाला सरकारी तालीमी इदारों की निजकारी पंजाब हुकूमत की जानिब से लीव इनकैशमेंट के तरमीमी फैसले और पेंशन रोज में तरमीमी फैसलों के खिलाफ टीचर तंजीमों के साथ साथ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जलालपुर पीरवाला की टीचर समेत तलबा ने पुरअमन एहतजाज किया और गैर मुअय्यना मुद्दत तक तदरीसी सरगर्मियाँ और डेंगी एक्टिविटीज़ का अमल रोक दिया गया। इस मौके पर स्कूल की टीचर ने प्ले कार्ड उठा रखे थे। स्कूल की टीचर का कहना था कि जी पूरे पंजाब में ये जो बेचैनी और इसराब सरकारी मुलाजमिन में पाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ निगरान हुकूमत की नाअहली है। रोज़गार के मौके पैदा नहीं कर सकते और जिनका रोज़गार है उनके रोज़गार छीन कर उनके बच्चों को सड़कों पर लाने पर ये यहाँ पे मजबूर कर रहे हैं कि गुर्बत के इनके दिन पूरे हो जाएं और ये सड़कों पे मर जाएं। हमें हुकूमत के ऐसे इक़दाम से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँची है। हमारा माशी कत्ल बंद किया जाए और जो असातिज़ा कराम जो बाइज़्ज़त लोग गिरफ्तार हुए हैं उन सब को ये बाइज़्ज़त तरीके से बरी करें और हमारे जो जायज़ मतलबात हैं वो तस्लीम करें और हम अपने मतलबात तस्लीम ना होने तक सुकून से नहीं बैठेंगे, ये सबको पता होना चाहिए। टीचर्स ने पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया है कि सरकारी तालीमी इदारों की निजकारी नाकाबिल कबूल है। पंजाब हुकूमत की जानिब से लीव इनकैशमेंट और पेंशन रोज में तरमीमी फैसलों को फौरी वापस लिया जाए। हुकूमत इस मामले पर कुछ मुस्बत पॉलिसी मुरतब करे। कैमरा टीम के साथ
बहवाना के इलाके लंगराना में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद नदीम के नाम से हुई है। मुलजिम के दीगर साथी नदीम, रमजान, इरफान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। दूसरी जानिब तालीमी इदारों की निजकारी के खिलाफ जदोई में सासा का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करते हुए शदीद नारेबाजी की। गैर मुअय्यना मुद्दत तक तदरीसी सरगर्मियों और डेंगी एक्टिविटीज का अमल रोक दिया गया। टीचर्स ने पुरअमन एहतजाज करते हुए प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। डीपीओ सादकाबाद रिजवान उमर गोंदल की क़यादत में एंटी हनी ट्रैप सेल्स की कार्रवाइयां जारी हैं। मजीद 3 शहरियों को अगवा होने से बचा लिया। शहरी सस्ता कैरी डब्बा खरीदने के लालच में कच्चा सिंध के अगवाकारों के चुंगल में फंसने जा रहे थे। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि डीपीओ सादकाबाद रिजवान उमर गोंदल की क़यादत में एंटी हनी ट्रैप सेल्स की कार्रवाइयां जारी हैं। मजीद 3 शहरियों को अगवा होने से बचा लिया। कानपुर में पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई मंजर आम पर आ गई। भारी मिकदार में शराब, चर्स, दीगर मनशियात बरामद करके 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। SHO सिटी हिदायतुल्लाह चांडिया का कहना था कि मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नाज़रीन, खबर यह है कि नवाब सर सादिक अस्पताल में अवाम को मुफ्त सहूलत फ्राहम की जा रही है। MS डॉक्टर अब्दुल गफूर चौहान का कहना था कि अस्पताल में स्टेट ऑफ द आर्ट ब्लड बैंक भी बनाया गया है, जिसमें ब्लड देने वाले को फ्रेशमेंट के तौर पर जूस भी फ्राहम किया जाता है। अस्पताल में खूबसूरत पनाहगाह भी बनाई गई है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। MS नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल बहावलपुर डॉक्टर अब्दुल गफूर चौहान ने कहा कि नवाब सर सादिक अस्पताल में अवाम को मुफ्त सहूलियत फराहम की जा रही है। अस्पताल में स्टेट ऑफ द आर्ट ब्लड बैंक भी बनाया गया है, जिसमें ब्लड देने वाले की फ्रेशमेंट के तौर पर जूस भी फराहम किया जाता है। दूसरी जानब अस्पताल में खूबसूरत पनाहगाह भी बनाई गई है। मरीजों के साथ आने वाले लकीन के लिए मेल और फीमेल अलग-अलग कमरे भी बनाए गए हैं और साथ साथ अलग-अलग डाइनिंग हॉल भी हैं। इसके अलावा गैनी वार्ड में रोजाना 30 से 40 ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल गफूर चौहान MS सादिक अब्बासी हॉस्पिटल हूँ। तो ये हमारा ब्लड बैंक है। ये ब्लड बैंक पहले ये सिंपल कंडीशन में था, इसको हमने रेनोवेट कराया है। इसकी सीलिंग और वॉल्स और सारी चीज़ें हमने इसमें नई लगवाई हैं। तो उसके बाद हम पेशेंट्स के लिए एंटरटेनमेंट के लिए इसमें LCD लगी हुई है, जिसमें पेशेंट जो ब्लीड होते हैं, जो ब्लड का डोनेशन देते हैं, वो उसमें लेटे रहते हैं। ये आप सामने देख रहे हैं। तो उसके अलावा पेशेंट की एंटरटेनमेंट के लिए उनको जूस और खजूरें वगैरह भी हम पेश करते हैं जो ब्लड देते हैं। तो ये सेक्रेटरी साहब की हिदायत के मुताबिक हमने इसको दोबारा रेनोवेट करवाया है 8 लाख रुपए की लागत से। इसके अलावा हॉस्पिटल में ये है कि तमाम ब्लड टेस्ट जो इंडोर हैं वो फ्री मिलते हैं, तमाम इंडोर मेडिसिन फ्री मिलती हैं। और उसके अलावा जो है हॉस्पिटल में जो अटेंडेंट्स आते हैं पेशेंट के साथ, उनके लवाहिकीन होते हैं, उनके लिए पनाहगाह को खोला है। उसमें 90 लोगों के रहने की गुंजाइश है, जिनको रात का खाना और सुबह का नाश्ता फ्री मिलता है। उसके अलावा फीमेल हॉस्टल है, उसको खोल दिया गया है, वो अब इस्तेमाल हो रहा है, पहले बंद पड़ा था। उसके अलावा हमने हॉस्पिटल का जो नाम है वो पहले सिविल हॉस्पिटल था, उसका नोमेनक्लेचर बोर्ड्स पे, साइन बोर्ड्स पे वो चेंज करवा दिया है। और हॉस्पिटल में जो लाइटिंग सिस्टम था उसको मज़ीद बेहतर किया है, इजाफी ट्यूबलाइट्स लगाई हैं। तो इस तरह से हॉस्पिटल में तमाम टेस्ट और हर किस्म के ऑपरेशन फ्री हो रहे हैं। गायनाकोलॉजी का डिपार्टमेंट हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है। 30 से ज़्यादा डेली सर्जरियाँ, ऑपरेशन और डिलीवरियाँ हो रही हैं। और उसके साथ साथ ही बच्चों की निगहदाश्त का जो यूनिट है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसमें हर तरह के बाहर के बच्चे भी हम एंटरटेन करते हैं और जो हमारे हॉस्पिटल में डिलीवर होते हैं उनको भी हम एंटरटेन करते हैं। तो वो सब बच्चों के लिए जो है नियोनेटल ICU वो मौजूद हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। खबर शामिल करें नारंग मंडी से, जहां मरकजी विलायत और तहरीक बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकजी कायद आगा मोहम्मद तनवीर जाफरी की क़यादत में फ़लस्तीन के हक में रैली निकाली गई। कहा कि तमाम मुस्लिम मुमालिक फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए जिहाद का ऐलान करें। रिपोर्ट करेंगे कमर कुलाटी।
نارمنڈی میں مرکز ولایت اور تحریک بیداری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرکزی رہنما آقا محمد تنویر جعفری کی سرپرستی میں فلسطین کے حق میں فقید المسار ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی مرکز ولایت نارمنڈی جامع مسجد ختیجہ الکبریٰ سے نکالی گئی، جو 1 کلومیٹر کی مسافت کے بعد ریلوے اسٹیشن پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں بچوں نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جس میں امریکہ اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے درج تھے۔ ریلی میں تمام کاتب فکر کے عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ریلی سے جماعت اسلامی کے رہنما چودھری زاہد عمران کوٹرانا، چودھری افتخار احمد بٹر، انجمن شہریہ کے چیف آرگنائزر حافظ رانا اون الباری، شیخ سید احمد فاروقی، چودھری کلیم اللہ بٹر، صلاح الدین ایوبی، قاری عباس، خرم نثار قادری، آغا تنویر جعفری نے خطاب کیا اور کہا کہ اس وقت میدان کربلا سج چکا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون کوفی کا کردار اور کون کربلائی کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ امت مسلمہ کا مشترکہ مسئلہ ہے، لہٰذا امت دشمن کے سامنے سیسہ پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہو جائے۔ مزید جانتے ہیں مقررین کی زبانی۔ جی مجاہدین حماس نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے اور وہ کار دکھایا ہے جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، چونکہ سب نے دیکھا کہ یہ وہ فلسطین کے مجاہدین جن کے ہاتھوں میں یا غلیل ہوا کرتی تھی یا جن کے ہاتھوں کے اندر کمکریاں ہوا کرتی تھی، لیکن چونکہ وعدہ الہی نے سچ ہونا تھا کہ اگر کوئی آ کر کعبہ کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے اور ہاتھیوں کو لے کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ابابیلوں کے منہ میں کمکریاں دے کر انہیں ہاتھیوں کو واسطے جانا کر دیتا ہے اور صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ تو خداوند متعال نے یہ وعدہ آج ہمارے عصر کے اندر بھی سچا کر کے دکھا دیا، ثابت کر کے دکھا دیا۔ اگر ہم قرآن پر ایمان لے آئے، قرآن آیات کو سمجھ لیں تو آج بھی اس آیت کا مصداق حماس نظر آ رہا ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ۔ مسلمانوں کے دنیا میں جو حالات ہیں، ہر کسی کے دل میں ضرور یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمان دنیا کے کسی بھی علاقے اور خطے میں محفوظ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا وعدہ تو رپورٹ آپ نے جانی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مرید کے سلطان پارک میں لیسکو کے نادہندہ کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ مشتعل افراد کا وابستہ ملازم پر حملہ مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ عسکر چراغ گارڈ افتخار نے لیسکو اہلکار مسعود الرحمان کو پستول کے بٹ اور لوہے کے روڈ سے تشدد کا نشانہ بنایا۔ ایس ڈی او فیصل امین کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس نے اہلکار کو ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا۔ خبر شامل کریں علی پور سے، جہاں حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ کے 126ویں اور اس کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز 21 اکتوبر سے ہوگا۔ تقریبات کی نگرانی خواجہ محمد عامر کوریچا کریں گے۔ اماد کوریچا ملک بھر سے قافلوں کی تیاریاں مکمل کرنے کا مشن۔ مذہبی اسکالر خواجہ اماد عامر کوریچا نے علی پور سے قافلوں کا آغاز کر دیا گیا۔ اماد کوریچا کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب ملتان میں 1 دن کی چھٹی کا اعلان کریں۔ خبر شامل کریں پاک وطن سے، جہاں تھانہ ملکہ ہانس پولیس کو چھاپا مہنگا پڑ گیا۔ علاقے نور جنگ میں کارروائی کے دوران ملزمان کا اہلکاروں پر حملہ، پتھراؤ، سب انسپیکٹر سمیت 2 اہلکار شدید زخمی ہو گئے۔ ملزمان چوری، ڈکیتی اور رہزنی جیسی وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے۔ منڈی بہاؤالدین میں سپیریئر کالج میں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء نے انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نشاور کیے۔ نعت خواں حماد اسلم چشتی نے سماع باندیا۔ پرنسپل کالج پروفیسر حفیظ احمد ملک کا کہنا تھا کہ معاشرہ تعلیم و تربیت کے بغیر ترقی کی شاہراہ پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے اس کی نوجوان نسل کی اعلیٰ تعلیم ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ کالج کے طلباء اور طالبات کو بہترین کارکردگی دکھانے پر تعریفی شیلڈ سے نوازا گیا۔
डीपीओ कसूर तारिक अजीज सिंधु की थाना मुस्तफाबाद में खुली कचहरी मुनक्किद हुई। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। शिकायत को मौका पर हल करने के अहकाम जारी किए गए। इंसाफ की फराहमी में ताखीरी हरबे हरगिज इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। पुलिस अफसरान खिदमत खल्क के जज्बे के तहत मजलूमों की दाद रसी करें और उनकी दुआएं ले। डीपीओ कसूर का जामिया मस्जिद शान इस्लाम में शहरियों से खिताब, मुस्तफाबाद का मिसाली कस्बा बनाने के अज़्म का इजहार किया। समाज दुश्मन अनासर की गिरफ्तारी के लिए शहरियों से पुलिस के साथ ताउन करने की अपील। नारोवाल पुलिस मसीहा बन गई। डीएसपी शकरगढ़ ने हादसे में जख्मी बची सायरा शहजाद को सरकारी गाड़ी में अस्पताल पहुंचा दिया। अवाम दोस्त पॉलिसी पर शहरियों का डीपीओ नारोवाल राना ताहिरुर रहमान को खराज तहसीन पेश है। डीपीओ राना ताहिरुर रहमान का कहना है कि आईजी पंजाब की खुसूसी मुहिम अवाम दोस्त पॉलिसी जारी रहेगी। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से नारोवाल से, जहां पुलिस मसीहा बन गई। डीएसपी शकरगढ़ ने हादसे में जख्मी बची सायरा शहजाद को सरकारी गाड़ी में अस्पताल पहुंचा दिया। अवाम दोस्त पॉलिसी पर शहरियों का डीपीओ नारोवाल राना ताहिर को खराज तहसीन पेश है। डीपीओ राना ताहिर का कहना है कि आईजी पंजाब की खुसूसी मुहिम अवाम दोस्त पुलिस जारी रहेगी। वहीं दूसरी जानिब बुर्ज शरीफ में बकरियों की नायाब नस्ल नाची गोल्ड का सालाना इकरोसा कैटवॉक मेला सज गया। जीतने वाली बकरियों की लाखों रुपए कीमत मुकर्रर कर दी गई। शायकीन ने बकरियों की वॉक देखकर लुत्फअंदोज होते रहे। ढोल की थाप पर भंगड़े डालेकर रक्स करते रहे। शायकीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सकाफती मेले पर तवज्जो दी जाए तो दुनिया भर में सकाफत मुतारिफ की जा सकती है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, खबर शामिल करें पाकपतन से, जहां धान की पैदावार बढ़ाने के लिए मौजी का बीज मुतारिफ करवा दिया गया, जिसको कम पानी वाले इलाकों में काश्त करके फी एकड़ 100 मन से ज्यादा मौजी की पैदावार हासिल की जाएगी। मज़ीद जानते हैं तारिक सज्जाद चिश्ती की इस रिपोर्ट में। पाकपतन में खुराक की पैदावार बढ़ाने के लिए निजी पेस्टिसाइड कंपनी ने नई रिसर्च मुतारिफ करवा दी। तरबीती वर्कशॉप में जिला भर से किसानों ने कसीर तादाद में शिरकत की। हाइब्रिड बासमती और एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज जो मुतारफ करा रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन करवाना था, और कुछ नई वैरायटीज हैं जिनमें पोटेंशियल 180 से 200 मन तक इंशाल्लाह रिकॉर्ड हुआ है, और वो आगे इतना पोटेंशियल जो है फार्मर फील्ड में भी आएगा। We hope inshallah in the future our growers will get good profit from the field, get good profit from God Group products. Thank you. माहिरीन ने शुरा को कम पानी वाले इलाकों में धान की पैदावार के इजाफे के लिए काश्तकारी के जदीद तरीके भी सिखाए। इलाज है ये, इसमें सबसे जो अहम बात है वो खबर शामिल करें हुजरा शाह मुकीम से, जहां शेरगढ़ रोड खस्ता हाली का शिकार है। गर्दो गुबार से इलाका मकीन फेफड़ों के अमराज में मुब्तला होने लगे। मुतासिर ने फौरी रोड की तामीर का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। हुजरा शाह मुकीम शेरगढ़ में रोड टूट फूट का शिकार है। ये सड़क हुजरा शाह मुकीम को न सिर्फ सैकड़ों देहात से मिलाती है, बल्कि लाहौर, पत्तोकी, रिनाला खुर्द और उकाड़ा को सफर करने वाले मुसाफिर इसी शाहराह को जेरे इस्तेमाल लाते हैं। इलाका मकी इस रोड से उड़ने वाली गर्दो गुबार से फेफड़ों के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। हुजरा ता शेरगढ़ रोड बड़ा खराब है, 6 महीने तो कटिया पे तो बन नहीं रहा। लोगों को आन जान में बड़ी तंगी ते दुश्वारी है। सड़क सारी खराब हुई है। शहरी जेड़े बड़े तंग होंदे ने, उस सड़क नु 150 तो ज्यादा पिंड लगदे ने ते कई शहरों नु लगदे ने। साडी हुकूमत नु पुरज़ोर अपील है कि उस सड़क नु मुकम्मल करवाया जाए। वाज़ेह है कि ये सईदा मेमनत मोहसन अल मारूफ जुगनू मोहसन किरमानी, साबिक सूबाई वजीर
सैयद रजा अली गिलानी, साबिक वफाकी वजीर राव मोहम्मद अजमल खान और सैयद आशिक हुसैन करमानी का यही हल्का इंतखाब है। इस रोड से मुतासरीन ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि रोड को आज सरे नौ तामीर किया जाए। कैमरामैन शफ अफसोसनाक खबर शामिल करें हबीबाबाद से, जहां इमाम मस्जिद की 9 साल बच्ची से मुबैना ज्यादती की कोशिश है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुतासरा बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। जामिया गुजरात मंडी बहाउद्दीन सब कैंपस में रेस्क्यू के सेफ्टी विंग का आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। तलबा तालिबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। रेस्क्यू इंस्ट्रक्टर्स ने तलबा को जिंदगी बचाने की बुनियादी महारतों बारे में आगाही मुहिम की। डायरेक्टर कैंपस जहीरुद्दीन बाबर का कहना था कि रेस्क्यू से आगाही मुआशरे का अहम जुज है। खबर शामिल करें फिरोज वटवा से, जहां बदबख्त बेटे ने वालिद को कत्ल करके लाश नहर में फेंक दी। पुलिस ने शक पर आसिफ को गिरफ्तार किया तो मुलजिम ने एतराफे जुर्म कर लिया। नारावाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई मंसर-ए-आम पर आई। 5 साल कमसिन बच्ची पर जिनसी हमला करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। डीपीओ नारावाल राना ताहिर रहमान ने फौरी नोटिस लेते हुए डीएसपी सदर को कार्रवाई की हिदायत कर दी। खबर शामिल करें पतौकी से, जहां मुस्लिम लीग वुमेन विंग के ज़ेरे एहतमाम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। शुरका किनारेबाजी, फसा, इसराइल मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठी। खवातीन की कसीर तादाद सड़कों पर निकल आई। मुल्क भर की तरह कोटअदू में भी फलस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म सितम के खिलाफ तहरीके बेदारी उम्मत मुस्तफा के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली खत्म नबुव्वत चौक से शुरू होकर प्रेस क्लब कोटअदू के सामने इख्तिताम पसीर हुई। अमीर जमात इस्लामी फुरकान आसिफ वस्तार ने भी फलस्तीनियों से यकजहती के हवाले से खिताब किया। रैली से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने अक़वाम मुत्तहिदा से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। आजाद कश्मीर में बिजली और आटे पर सब्सिडी दी जाए। जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी कराची के मेंबर जुल्करनैन कहते हैं कि अवाम पर बोझ डालना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नूर अमीन से। जी नूर, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी कराची के जो मेंबर है जुल्करनैन खान साहब। आजाद कश्मीर के अंदर इस वक्त एक तहरीक चल रही है और वहाँ के मसाइल के हवाले से जुल्करनैन से बात करते हैं। जुल्करनैन, बताइएगा कि इस वक्त आजाद कश्मीर के अंदर अवामी तहरीक चल रही है जो बड़े जोरों शोर से जारी है। उनके मुतालबात है कि बिजली और आटे पे सब्सिडी दी जाए, तो इसको आप कैसे देखते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। तो दूसरी बात यह है कि ये जो मौजूदा तहरीक है जो पिछले 5 माह से चल रही है, ये बुनियादी इंसानी और कानूनी आइनी मुतालबात के ऊपर चल रही है। उसका पहला मुतालबा हमारा ये है कि फ्री बिजली, मुफ्त बिजली। मुफ्त बिजली से मुराद ये है कि हम बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जुल्म की इंतहा ये है कि पानी से बनने वाली बिजली पे फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लिए जा रहे हैं। तो इसका एक तो हमारा ये मुतालबा है कि इसको ख़त्म किया जाए और हमें जो प्रोडक्शन हम जितने कास्ट पे कर रहे हैं उस पे हमें दी जाए। दूसरा हमारा मुतालबा ये है कि मुतनाज़ा इलाकों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक वहाँ पे सब्सिडी दी जाती है, जो कि भारतीय मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दी जा रही है, जो कि हमें नहीं दी जा रही। तो हमारा मुतालबा है कि आटा और बाकी जो 48 और चीज़ें अशिया खुर्दोनोश जिन पे हमें सब्सिडी दी जाए। तीसरा मुतालबा हमारा ये है कि हुकूमती अशराफिया की मराद का ख़ात्मा। वो ऐसे है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब से लेके हमारे मुशीरान, वज़रा, जज साहिबान, जितने भी सरकारी लोग हैं, उनको इतनी मराद दी जाती हैं कि वो इतनी मराद ले जाते हैं कि हमारे बच्चों के से रोटी का नवाला छीन लिया जाता है। उनको बिजली फ्री, तालीम फ्री, सेहत फ्री,
ट्रैवल फ्री, हर तरह की चीज़ उनको फ्री दी जाती है। तो एक तो हम उसका खात्मा चाहते हैं कि ये ख़त्म हो जाए ताकि हमारी आवाम खुशहाल हो। जी बिल्कुल, इस जुल्करनैन से बात की, इनके जानिब से कहा गया कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो बिजली और आटे उस पर सब्सिडी दी जाए और वहाँ पे जो वहीं दूसरी जानिब इसराइल गजा में फलस्तीनियों पर बेदर्दी से बमबारी कर रहा है, जिससे अब तक सैकड़ों फलस्तीनी शहीद और हजारों जख्मी हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साबिक मुशीर सरदार मोहम्मद इकबाल यूसुफ का शाइया से खिताब, कहा इसराइली फौज की जानिब से गजा पर शदीद बमबारी के बायस फलस्तीनियों के घर मिस्मार हो चुके। किप्रो के रॉयल पब्लिक स्कूल में सालाना इम्तिहान 2023 के रिजल्ट का ऐलान कर दिया गया। पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों को इनामात से नवाजा गया। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं सांगढ़ से, जहां अजीमी पब्लिक स्कूल में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। तलबा ने इंतहाई अकीदत व एहतराम के बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत के फूल निछावर किए। गुलाम मुस्तफा अजीमी, मोहम्मद अजान आतिफ, फैजान आतिफ, रबीशा आतिफ और दीगर ने इस मौका पर शिरकत की। अफसोसनाक खबर शामिल करें गौसपुर से, जहां तेज रफ्तार मोटरसाइकिल बेकाबू होकर स्लिप हो गया। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, मरने वाले शख्स की शनाख्त सावन उगाही के नाम से हुई है। अंजुमन ताजरान मीरपुर खास के ज़ेरे एहतमाम यौम शोहदा पाकिस्तान के सिलसिले में मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर्स ने शिरकत की। कैंप में मरीजों का मुफ्त इलाज, अद्वियात फ्राहम की गई। मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर अब्दुल जबाद का कोहिनूर न्यूज से क्या कहना था, ये जानते हैं। जी बताइएगा इस हवाले से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर खास के मरकजी अंजुमन ताजरान के ऑफिस में, जहाँ मीरपुर खास के मरकजी अंजुमन ताजरान की तरफ से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है, जहाँ मीरपुर खास के मुख्तलिफ इलाकों से शहरी दवाई लेने के लिए मेडिकल कैंप पर मौजूद है। मेरे साथ मीरपुर खास के मरकजी अंजुमन ताजरान मौजूद है। मजीद आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी, आज मरकज़ी अंजुमन ताजरान की जानिब से सुबह 9 बजे से ये मुख्तलिफ हमारे सर्जन डॉक्टर्स OPDs कर रहे हैं, जिसमें फ्री चेकअप, टेस्ट है और मलेरिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस B, C और दीगर अद्वियात जो है वो मुफ्त फराम की जा रही हैं। इस वक्त तकरीबन 3 बज रहे हैं और 3 बजे तक हमारी 200 से अबाव हमारे पेशेंट मुख्तलिफ जो डॉक्टर्स देख चुके हैं, जिसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा जो मीरपुर खास के जो अमराज में जो हमें पाए गए हैं वो हमारे जनरल फिजिशंस और सर्जिकल के हमारे जो और आर्टो के, ये हमारे पास मरीज में बहुत ज़्यादा इजाफा है। और यहाँ पे DHO की जानिब से हमारे साथ भरपूर ताउन किया गया है। दीगर फार्मर्स ने भी मरकज़ी अंजुमन ताजरान के साथ भरपूर ताउन किया है। यह हमारा सालाना कैंप है मरकज़ी अंजुमन ताजरान का शोबा सेहत, जिसमें हमारे शोबा सेहत के जो खबर शामिल करें आरिफवाला से, जहां राय बरादरी के ज़ेरे एहतमाम पब्लिक सेक्रेटेरिएट पर आवाम के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में मरीजों का फ्री चेकअप, फ्री अद्वियात फ्राहम की गई। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज रजा सैदी से। राई कम्युनिटी आरिफवाला के ज़ेरे एहतमाम मोहम्मदी रोड सेक्रेटेरिएट पर एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मर्द और ख्वातीन मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए ये एक रोजा कैंप अराई कम्युनिटी के सरबराह मेहरान अकरम चौधरी, चौधरी सुल्तान, मसूद अरशद चौधरी, जिले जनरल सेक्रेटरी और मियां साजिद लतीफ, शाहिद सत्तार चौधरी, मरकजी ओहदेदार अफजल नईम चौधरी एडवोकेट हाई कोर्ट, साबिक जनरल सेक्रेटरी बार और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन अराई बरादरी ने मुस्तहिक मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए फ्री अल्ट्रासाउंड, फ्री ECG, फ्री लेबॉरेटरी टेस्ट की सहूलियात मुहैया की ताकि अवामुन्नास इससे मुस्तफीद हो सके। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आरिवाला के मारूफ डॉक्टर अमीर हैदर और इनके अलावा डॉक्टर अब्दुल वासे, डॉक्टर जुबैर चौधरी ने मरीजों का चेकअप किया। रजा जैदी, कोहिनूर टी। खानका डोगरा में मुनशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस का बड़ा क्रैकडाउन जारी है। SHO लतीफ गुज्जर ने कार्रवाई करते हुए शेख इकबाल निसार और आसम उर्फ अज्जू को गिरफ्तार करके 4 किलो से ज्यादा चर्स बरामद कर ली।
यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। शाहदरा में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली की क़यादत समाजी शख्सियत सुहेल इकबाल चिश्ती, चौधरी फैसल कादिर गुज्जर ने की। शुरका ने इसराइल के फलस्तीन पर हमलों की शदीद अल्फाज में मुसम्मत की। रैली में इस्लामी स्कॉलर्स समेत मुख्तलिफ मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ मोहम्मद यूनुस की इस खुसूसी रिपोर्ट में। शाहदरा समाजी शख्सियत सुहेल इकबाल चिश्ती की जानिब से इसराइल की जानिब से फलस्तीन पे हमलों की भरपूर मजम्मत और फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए मीडिया कॉन्फ्रेंस और रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत समाजी शख्सियत सुहेल इकबाल चिश्ती और चौधरी फैसल कादिर गुज्जर ने की, जिसमें इस्लामी स्कॉलर समेत मुख्तलिफ मुकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। फलस्तीनी अवाम पर इसराइली अफवाज के जुल्म बर्बरियत के खिलाफ शाहदरा सुहेल इकबाल से कोट शहाबुद्दीन बाजार तक रैली निकाली गई, जिसमें दीनी स्कॉलर समेत मुख्तलिफ मुकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की और फलस्तीनी अवाम से भरपूर इजहार यकजहती करते हुए फलस्तीनी अवाम जिंदाबाद इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। रैली के शुरुका से खिताब करते हुए चौधरी सुहेल इकबाल ने कहा कि हम इसराइली अफवाज की जानिब से फलस्तीनी अवाम पर ढाए जाने वाले जुल्म बर्बरियत की भरपूर मजम्मत करते हैं और फलस्तीनी अवाम के जोश जज्बे और हिम्मत को सलाम पेश करते हैं कि वो इसराइली फौज के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह डट खड़े हुए हैं। मजहबी स्कॉलर्स और समाजी शख्सियत चौधरी फैसल कादिर गुज्जर ने कहा कि हम अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि वो अपना किरदार अदा करें और फलस्तीनी अवाम पर ढाए जाने वाले जुल्म बर्बरियत को फिलफूर बंद करवाया जाए। रैली डेरा चौधरी सुहेल इकबाल से शुरू होकर कोट शहाबुद्दीन इख्तिताम पजीर हुई, जहां फलस्तीनी अवाम की मदद और नुसरत के लिए साहबजादा अब्बास अली रजा की जानिब से अल्लाह के हुज़ूर खुसूसी दुआ करवाई गई। कैमरामैन कासम अली के साथ नासिर खबर ये है कि मेहनती फर्शनास अफसरान और एहलकार फोर्स के लिए मुश्किल रहा है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की डीएचए ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक की मुलाकात में गुफ्तगू। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि मेहनती फर्शनास अफसरान और एहलकार फोर्स के लिए मुश्किल राह है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की डीएचए ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक की मुलाकात हुई। उनसे गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लाहौर कारकर्दगी के लिहाज से पंजाब पुलिस के माथे का झूमर है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने खतरनाक मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज की हैं। बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल अफसरों की हौसला अफजाई की गई। महकमा पुलिस की एहसन रिवायत है। आज पंजाब बेहतरीन कारकर्दगी पर DSP रिजवान चीमा, ASI रमजान को तारीफी असनाद और नकद इनाम से नवाजा किया। नासिर खबर शामिल करें लाहौर से, जहां अली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सिफर से प्रोडक्शन के ज़ेरे एहतमाम मेगा म्यूजिकल नाइट प्ले के दूसरे रोज का इनेकाद किया गया। नौजवानों ने फन का मुजाहरा किया, जिसको देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद ने इसमें हिस्सा लिया। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे आयान मलिक। लाहौर में सिफर प्रोडक्शन के ज़ेरे तमाम अली ऑडिटोरियम में म्यूजिकल प्ले के दूसरे रोज का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवान अदाकारों ने अपने अपने फन का मुजाहरा किया। इस इवेंट में नौजवान लड़के लड़कियों ने अपने फन का मुजाहरा बादशाह अकबर आजम, अनारकली, शेखू, पाकीज़ा समेत दीगर कैरेक्टर्स करके किया। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था थिएटर का, तो मतलब बहुत अच्छा लगा हमें कि मतलब एक आपको नए तरीके से तरीका बता रहे हैं और बंदा बोर भी नहीं हो रहा और पुरानी तरीका भी पता चल रहा है और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इससे मेरे ख्याल से लोगों को बहुत ज़्यादा चांस भी मिलते हैं और टैलेंट हमारे पाकिस्तान का प्रमोट होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत मज़ा आया हमें। शुक्रिया। सबसे बढ़ के बात जो है वो फैमिलीज़ में आके बंदा ना फ्री फ्रैंकली देख ले। बच्चियाँ भी आई हैं हमारी साथ, तो बच्चे भी आए हैं, तो हमने बहुत इंजॉय किया है कि अभी तक हमारा वापस जाने को दिल नहीं कर रहा। हमने एक एक लम्हा एंजॉय किया, गुड टाइम, बहुत मज़ा आया, वो बहुत अच्छा था। सब बच्चों ने बहुत ही अच्छा काम किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम अब्दुल कादिर है। मैंने पहली दफ़ा प्ले लिया है, मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे सबसे ज़्यादा करैक्टर वो पाकीज़ा अच्छी लगी और हमारे भाई ने सारे सेट डिज़ाइन किए थे। मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आया। मैं अगली बार भी इंशाल्लाह आऊँगी।
शो में आए शायकीन का कहना था कि इस तरह के इवेंट पाकिस्तान में होने चाहिए ताकि फनकारों को अपने अपने फन दिखाने का मौका मिल सके। मुगल आजम का जो सा ये शो था ना सिफर से वालों का, इन्होंने बहुत कह लें कि हिस्ट्री जो सी है उसको एक इन्होंने फिर से इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा। ये जो है ना हमें इंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है, हमें तारीख का भी पता लगेगा, हिस्ट्री का पता लगेगा, तो इससे काफ़ी बच्चों को भी जो है ना वो काफ़ी उनकी हिस्ट्री अच्छी होगी। 3 रोजा म्यूजिकल फैशन शो के मैनेजमेंट हेड दानियाल चौधरी, साद मुस्तनसर, मुनीब वहीद, राइटर मेनाल फयाज, डायरेक्टर राय अली, मुनीब वहीद, प्रोडक्शन डिजाइनर जोहा शेख, आर्ट डायरेक्टर बदियाल खालिद और हमाद फयाज की भरपूर मेहनत से सिफर प्रोडक्शन के जेरे तमाम 3 रोजा शो का दूसरा रोज कामयाबी समेत इख्तिताम पजीर हो गया। कैमरामैन नवाज के साथ अयान मलिक, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। नाज़रीन, बड़ी खबर आपको दे कि मुस्लिम लीग नून को 21 अक्टूबर को ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसे की इजाजत मिल गई है। डीसी लाहौर राफिया हैदर ने 39 नकात पर मुश्तमिल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि मुस्लिम लीग नून को 21 अक्टूबर को ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसे की इजाजत मिल चुकी है। डीसी लाहौर राफिया हैदर ने 39 नकात पर मुश्तमिल नोटिफिकेशन इस हवाले से जारी कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि मुस्लिम लीग नून को 21 अक्टूबर को ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसे की इजाजत मिल गई है। डीसी लाहौर राफिया हैदर ने 39 नकात पर मुश्तमिल नोटिफिकेशन इस हवाले से भी जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि मुस्लिम लीग नून को 21 अक्टूबर को ग्रेटर इकबाल पार्क मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाजत मिल चुकी है। डीसी लाहौर राफिया हैदर ने 39 नकात पर मुश्तमिल इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज।